everyone, all the students of grade 5. This is Vaishnavi welcoming you again on the platform of Swift Lunch. So, yes, I'm welcoming you over here on the India's most sincere learning destination. And kids, since we are bringing so many sessions for you in line, so I hope you are enjoying the series. And this time, this chapter is from mathematics data handling. Okay, now I know that you kids are thinking what this data handling is all about, what we are going to learn into it. So don't worry, I'm here with you and I will be making things super easy for you all. Okay, so let's begin with this. But before that, let me tell you about the platform. So, yes, kids, you will be able to interact with the teachers easily, and in this way you will be able to put up your doubts as well. Okay, and in a batch we have a maximum strength of 6 students so that you can be heard over there. Okay, so yes, we have a lot of things for you to offer, so make sure you book your free trial class over here, and the link of the same can be found in the description box. So do make sure that you are booking your free trial class. All right, and if you are here for the first time, trust me, you should subscribe this channel. If not, you are missing something. So make sure you subscribe the channel and press the bell icon as well, because in that way you will be able to easily have all the chapters in a row. Okay, easily from the same channel and from the topmost teachers from all over the India. Okay, and if you like the session, do press the like button as well, and don't forget to share it with your friends as well. Okay, so here we go, the data handling. I hope you can see that all the kids running over here with data handling. What is it going to be about? Data handling. So yes, you have handled many things, राइट बच्चों, आपने बहुत सारी चीज़ों को हैंडल किया है. अब डेटा को हैंडल करना है तो उसके लिए हमें पहले पता होना चाहिए दैट व्हाट इज डेटा. ठीक है, चलो एक एग्जाम्पल लेते हैं. एग्जाम्पल मेक्स थिंग्स इजी. सो बेसिकली हम देखना आज यही करेंगे कि डेटा क्या है, उसको कलेक्ट कैसे करते हैं, उसको रिप्रेजेंट कैसे करना है. और ये सबसे ज़्यादा मज़ेदार चैप्टर आपके लिए होगा, क्योंकि बहुत ही आपको यहाँ पे अपना ड्राइंग दिखाने का भी मौका मिलेगा. ओके चलो बच्चों, तो चलो एक एग्जाम्पल लेते हैं. आई नो यू ऑल लव आईपीएल, है ना. तो आईपीएल की बात नहीं कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं ओडीआई की, राइट. तो कैन यू टेल मी कि सबसे ज़्यादा रन्स किसने स्कोर किए हैं अभी तक? डू यू हैव एनी आइडिया द मोस्ट scored runs or the most taken wickets by which player? No, but you know that we have answers of this. So yes, these are the top 6 highest scorers from world in ODI. Now students, you must be thinking कि ये हमारे पास ये सारी information कहाँ से आई? You said Google. But Google के पास कहाँ से आई? Yes, Sachin Tendulkar is the highest scorer. कैसे पता चल रहा है हमें that he is the highest scorer? तो बच्चों, ये जो सारी इंफॉर्मेशन है, इसी को आप कहते हो डेटा. ये क्या है? ये डेटा है. ओके, हाईएस्ट विकेट टेकर इन द ओडीआई इन द वर्ल्ड, एम मुरलीधरन. So how we are getting to know that Muralitharan has taken the highest wicket in the ODI? ये कैसे पता चल रहा है? Because we have some data. We have some information and that is what making things clear to us. बात समझ आ रही है? ये सारी चीज़ें जो आपको स्क्रीन पर दिखती हैं, ये सभी इनफैक्ट आपका जो भी आप स्कूल में अभी 5th क्लास में है, लेकिन आपका 1st क्लास से सारा रिकॉर्ड स्कूल में है. सो मीन्स व्हाट इज दैट? दैट इज द डेटा. यही है आपका डेटा. मीन्स डेटा इज दैट थिंग विच वी रिक्वायर, विच वी यूज to get out some information, to pick out some information, right? So data, please write down, data is what? It is collection of numbers to give some information. आपको अगर मैं यहाँ पर एक information दे दूँ in a piece of paper with some numbers, that is the data. In fact, the grocery bill, आपकी मदर फादर जो भी आपको एक ग्रोसरी बिल दिखाते हैं कि हाँ यू हैव परचेज्ड ऑल दीज थिंग्स फ्रॉम द स्टोर, सो दैट इज व्हाट? दैट इज ऑल्सो अ डेटा. ये भी एक काइंड ऑफ डेटा ही है बच्चों. ठीक है, सो व्हाट इज डेटा? इट इज अ कलेक्शन ऑफ नंबर्स टू गिव सम इंफॉर्मेशन. तो डेटा तो हमें क्लियर हो गया, राइट? अब इसको पढ़ना क्यों है ना? कितना अच्छा होता कि अगर हमें डेटा के बारे में पढ़ना ही नहीं होता. ऐसा क्यों है कि हमें इसे पढ़ना होगा? बच्चों, ट्रस्ट मी, 90% टाइम इन योर लाइफ यू आर एक्चुअली यूजिंग डेटा
टू डू समथिंग. अगर आपको आज कोई काम करना है तो आप उसके लिए भी कुछ प्री रिक्वायर्ड डेटा को यूज करेंगे, तभी यू विल बी एबल टू डू दैट. फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से यू हैव टू ओपन एन अकाउंट इन योर बैंक, तो उसके लिए भी यू रिक्वायर सम डेटा, है ना. यू रिक्वायर सम पीस ऑफ इंफॉर्मेशन. अगर आपको कहीं पे किसी प्लेस पे पहुंचना है, यू विल बी गेटिंग सम इंफॉर्मेशन. अब वो इन्फॉर्मेशन बहुत ही स्कैटर्ड फॉर्म में होगी, लेकिन अगर आप एक प्रॉपरली एनालाइज डेटा को आप यूज कर रहे हो, तो दैट इज मीन्स कि आप बेसिकली उस चीज के बारे में बहुत अच्छे से स्टडी कर रहे हो. तो डेटा को यूज करना बहुत जगह पर होता है. आपको पता चलता है कि आज पिछले साल वेदर कैसा था. हैव यू एवर हर्ड इन द टेलीविजन, in the news as well, that this is the most hottest day in from past 4 years. You must have heard of such news, right? तो ये सारी चीजें हमें कैसे पता चल रही हैं? By the pre-recorded data, right? अगर आपको बहुत सारी चीज़ों को स्टोर करके रखना है, आपको कंपेयर करना है कि किस टाइम पे, वेदर की मैं बात कर रही थी कि किस टाइम पे सबसे ज़्यादा बारिश हुई थी. कंपेयरिंग द डेटा, आपने कंपेयर किया कि सबसे ज़्यादा रन्स किसने बनाए, आपको कुछ कंक्लूजन ड्रॉ करना है. मीन्स आपको फाइंड आउट करना है कि यही चीज़ है, मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ. फॉर एग्जाम्पल, यू आर बाइंग एन मोबाइल फॉर यू, right? Means your dad or your mom is buying a mobile for them. So what they will be doing up, they will be comparing some data, and finally they will be able to get the thing ki हाँ, at this price with all these features, this is the phone which we can afford or which we can buy. So basically what we are doing, we are comparing, we are drawing some conclusion कि हाँ, हम ऐसा कर सकते हैं. तो डेटा आपको बहुत सारी जगह हेल्प कर रहा है, तो पढ़ना बनता है कि नहीं बच्चों इसको. तो चलो समझते हैं कि क्या करना होगा और कैसे हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चंस आएंगे. ठीक है, तो एक सीक्वेंस है जो हमें याद रखना है. सीक्वेंस का नाम है केयर. केयर तो आपने पता है, केयर आप सबको पता है. द सीक्वेंस का नाम है CAOR. Care. What does it say? It says first you have to collect the data. C for collect the data. Collect करने के बाद आपको डेटा को अरेंज करना है. आपने इंफॉर्मेशन सारी कलेक्ट कर ली, लेकिन अगर आपने उसको ढंग से अरेंज नहीं किया तो कुछ पता नहीं चलेगा, राइट? देन यू हैव टू ऑर्गेनाइज इट. ऑर्गेनाइज इन द सेंस कि ये इजीली एक्सेसिबल हो, प्लस फिर आप इसको इजीली रिप्रेजेंट कर सकते हैं. जस्ट कलेक्शन के बाद आप रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, आप कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि वो कुछ डेटा आपको प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं देगा, राइट? सो व्हाट यू डू इज यू कलेक्ट द डेटा, यू अरेंज इट, यू ऑर्गेनाइज इट एंड रिप्रेजेंट इट. ऑलराइट, ओके. तो चलो सबसे पहले हम समझते हैं कि हमने डेटा को कलेक्ट करने में क्या किया. फॉर एग्जाम्पल, आपको अपने स्कूल के 10 स्टूडेंट्स के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए हु लाइक्स मैथ्स. ओके, तो आपको इंफॉर्मेशन चाहिए उन 10 स्टूडेंट्स की जिनको मैथ्स पसंद है, द मोस्ट, ओके, जिनको सबसे ज्यादा मैथ्स पसंद है. तो उसके लिए यू रिक्वायर द डेटा फ्रॉम योर स्कूल. उन 10 स्टूडेंट्स का डेटा आपको पिक करना होगा. तो यही है बच्चों कलेक्शन ऑफ डेटा. किसी भी इंफॉर्मेशन को आपने कलेक्ट किया, दैट इज कॉल्ड एज कलेक्शन ऑफ डेटा. कलेक्शन कर लिया हमने, जैसे कि हम परफॉर्मेंस ऑफ क्लास मैथमेटिक्स में देखना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको मैथमेटिक्स के मार्क्स को सबको कलेक्ट करना होगा. कलेक्शन के बाद देन यू विल बी अरेंजिंग इट. अरेंजिंग मतलब हो सकता है कि आप ऐसे अरेंज करें कि सपोज मार्क्स थे आपके पास, तो आपने मार्क्स को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया. ये भी एक तरीका हो सकता है. या फिर आपने नेम के अकॉर्डिंग अरेंज किया कि भाई जिसका नाम ए से आता है वो पहले लिखा जाएगा, जिसका नाम जी से आता है वो लास्ट में लिखा जाएगा. अल्फाबेटिकली कर सकते थे, या फिर मार्क्स के बेसिस पे कर सकते थे. जिसको ज्यादा मार्क्स आए हैं उनको आपने ऊपर रख दिया, डिसेंडिंग ऑर्डर में करा. तो अरेंजिंग द डेटा, जैसे कि यहाँ पर एक अरेंजमेंट मैं आपको दिखा रही हूँ. एक एग्जाम्पल देखो आप यहाँ पर. These are the marks of 5 students from a class of Anshul, Bhuvan, Dheeraj, Isha and Neha. And these are their roll number. Roll number is 1, 2, 3, 4, 5 and the marks. Now you can see कि यहाँ पर जो हमने अरेंजमेंट किया है, अरेंज किया है डेटा को ऑन द बेसिस ऑफ रोल नंबर. जिसका फर्स्ट रोल नंबर है उसके 65 मार्क्स है, सेकेंड रोल नंबर के 58 मार्क्स है यानी कि भुवन के, थर्ड रोल नंबर के 92 मार्क्स हैं धीरज के, फोर्थ के 87 ईशा एंड फिफ्थ इज नेहा.
क्या हम इसको किसी और तरीके से भी अरेंज कर सकते हैं? यस, सो यस वी कैन अरेंज ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स एज वेल. तो अगर मैं चाहती हूँ कि भाई धीरज को हम फर्स्ट पोजीशन पे लिखें तो हम ऐसा भी कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे हमने कर दिया. हमने धीरज को सबसे पहले लिखा विद द हाईएस्ट मार्क्स 92. Then Isha is at second position with 87. Then Neha 75, Anshul 65 and Bhuvan 58. अब यहाँ पे रोल नंबर आपके अलग तरीके से, यानी कि आप उसी डेटा को किसी भी तरीके से अरेंज कर सकते हैं. ओके, हमने कलेक्ट कर लिया डेटा, अरेंज कर लिया. नाउ द थर्ड थिंग इज ऑर्गेनाइज. राइट, ऑर्गेनाइज इन अ वे दैट you will be able to use it for further uses. ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पे आपको कलेक्शन ऑफ डेटा का मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ कि अगर आप यहाँ से आपको पिक करना है, ऑर्गेनाइज करना है, यहाँ से ये देखना है कि सबसे हाईएस्ट मार्क्स किसके आए थे, तो आपके लिए बड़ा आसान हो जाएगा. देखना कि हाईएस्ट मार्क्स आपको दिख रहे हैं कि पहला बच्चा था जिसका हाईएस्ट मार्क्स थे 92 एंड दैट इज धीरज. तो यहाँ से आपके लिए ईजी हो गया कलेक्ट करना. ठीक है, तो बड़े बड़े डेटा के लिए आप क्या करेंगे, अगर आपको बहुत ज्यादा डेटा हो, यहाँ पे तो 5 स्टूडेंट थे, तो उसके लिए हमें प्रॉपरली अरेंज करना होगा इंफॉर्मेशन को एक प्रॉपर सीक्वेंस में. ठीक है, तो इस तरीके से जो हमने डेटा कलेक्ट किया दैट इज कॉल्ड एज अ रॉ डेटा, जो कि हमने डायरेक्टली खुद से निकाला है. ठीक है, ओके, नाउ कम्स रिप्रेजेंटेशन. वी हैव collected the data, we have arranged the data, we have organized it, and now coming to the representation of data. So अब रिप्रेजेंट करने के हमारे पास 2-3 मेथड्स हैं जो आपके एग्जाम में आते हैं. यहाँ से आपको करना है बच्चों पिक्टोग्राफ. ठीक है, आज हम सीखेंगे कि पिक्टोग्राफ में हम डेटा को किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं. बहुत सारे तरीके हैं. बार ग्राफ, पिक्टोग्राफ में आपको पिक्चर्स यूज करनी है, नाम से ही देखो मजा आ रहा है, पिक्टोग्राफ पिक्चर्स. यहाँ पे आप यूज करने वाले हैं पिक्चर्स. बार ग्राफ में यानी कि कुछ बार्स रहेंगे, ग्राफिकल फॉर्म में ये रहने वाला है. ऑल राइट, नाउ पाई चार्ट विल बी देयर एंड लाइन ग्राफ्स, कुछ लाइन ग्राफ रहेगा. तो हमें यहाँ पे आज सबसे पहले हम समझेंगे पिक्टोग्राफ कैसे करना है. ठीक है, तो चलो समझते हैं. ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और इजी है. लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड इट. पिक्टोग्राफ में हमें जो भी डेटा है उसको शो करने के लिए हम कुछ पिक्चर या कुछ भी सिंबल का यूज करेंगे. आइदर यू कैन यूज अ सर्कल, a small circle, you can use a star, you can use a bottle or anything, right? In the pictograph you will be using your data in the form of pictures. Let me show you an example. Okay, चलो, सबसे पहले आपको कोई भी सिंबल यूज करना है और इजी सिंबल. अगर आप एप्पल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो वो थोड़ा सा आपके लिए टफ हो जाएगा. आप सर्कल्स यूज कर सकते हैं. यू कैन यूज सम स्क्वायर्स और रेक्टेंगल्स और एन स्टार. ओके, सम काइंड्स ऑफ फिगर्स कैन बी यूज्ड. ठीक है, चलो, जैसे कि यहाँ पर डेटा को यूज किया गया है गर्ल के फॉर्म में और एक ये वाला सिंबल रिप्रेजेंट कर रहा है 5 गर्ल्स को. तो पहला चीज आपने यूज कर लिया सिंबल, और फिर दूसरा स्टेप है आपका कि आप इस सिंबल को दे दें वैल्यू, कि मतलब एक सर्कल कितना नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है. ये डिपेंड करेगा बच्चों की क्वेश्चन में आपकी वैल्यूज कैसी है. अभी टेंशन मत लो, अभी देखोगे क्वेश्चन तो बड़ा आसान होगा. ये हो सकता है आपको 10 रिप्रेजेंट कर रहा हो सकता है 100. तो ये आपको समझना होगा क्वेश्चन के हिसाब से. ठीक है, और फिर हम पिक्टोग्राफ को यूज कर लेंगे अपने डेटा को बनाने के लिए. चलो एक क्वेश्चन से समझेंगे, हमें इजी हो जाएगा. यहाँ पर हमारे पास एक इंफॉर्मेशन है. अ सर्वे ऑफ 120 स्टूडेंट्स वाज डन टू फाइंड द एक्टिविटी स्टूडेंट्स प्रेफर टू डू इन देयर फ्री टाइम. सो 30 स्टूडेंट्स play in the free time, 20 read storybooks, 25 watch TV, 10 students listen to music and 5 do painting. अब इसको हमें रिप्रेजेंट करना है एक पिक्टोग्राफ में. तो कैसे करना है मैं आपको बता चुकी हूँ. यू हैव टू ड्रॉ अ लाइन. ठीक है, सबसे पहला काम है हमारा कि हमें देखना है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ये जो नंबर्स हैं इन्हें रिप्रेजेंट करने के लिए हम कुछ सिंबल यूज करेंगे. तो आप कोई भी सिंबल यूज कर सकते हैं, सिंपल सा जो आपके लिए आसान हो. सो यहाँ पे मैंने यूज कर लिया एक सर्कल, राइट, एंड वन सर्कल. अब
अगर मेरे को 30 नंबर को रिप्रेजेंट करना है तो मुझे 30 सर्कल बनाने पड़ेंगे, फिर तो वो बहुत टाइम लगेगा, तो कोई फायदा ही नहीं है फिर इस पिक्टोग्राफ को यूज करने का। तो हम क्या करते हैं कि हम एक सर्कल को ये शो करते हैं कि एक सर्कल अगर मैं बना रही हूं तो उसका मतलब 5 स्टूडेंट्स है। एक सर्कल को बनाने का क्या मतलब है, 5 स्टूडेंट्स। तो अगर यहां पर मैं लिख रही हूं एक्टिविटी और यहां पर ये रिप्रेजेंट करेगा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। सो फर्स्ट है हमारे पास प्लेइंग। प्लेइंग में लिखा है 30। कितने स्टूडेंट्स है बच्चों, 30। तो आप अब देखिए यहाँ पे कि अगर टोटल 30 स्टूडेंट्स हैं और एक सर्कल 5 को रिप्रेजेंट कर रहा है तो मुझे कितने सर्कल बनाने पड़ेंगे 30 को कंप्लीट करने के लिए। 5 हाउ मेनी टाइम्स इज 30, यस 5 6 आर। सो आपको बनाने पड़ेंगे 6 सर्कल्स, 1 2 3 4 5 6, right? This is what you have to do. Next is reading book story books. Next is reading story books. इसके लिए you have 20. So 5 की टेबल में 20 कहाँ पे आता है, 5 4s are 20. So you will be making 4 circles for reading story books. Watching TV is 25. 5 की टेबल में 25 आता है, 5 5s are 25. So you have to make 5 circles for the same. Hope you got it, right? Interesting, easy है, मजेदार है। ओके, लिसनिंग टू म्यूजिक 10. सो आपको नंबर बड़ा अप्रोप्रिएट चूज करना है। यहाँ पे हमने यूज किया 5 स्टूडेंट्स, राइट? चलिए, तो लिसनिंग टू म्यूजिक इज 10. सो 5 की टेबल में 10 आता है 2 टाइम्स, सो आई हैव टू मेक 2 सर्कल्स। 5 2s are 10. And last is painting. तो उसके लिए you will be drawing just a single circle क्योंकि 5 ही है, and 5 1s are 5, so I will be making single 1. Right? Clear है? This is how you have to do this kind of activity. ओके, तो यहाँ पे स्माइली को यूज किया गया था, आप सर्कल यूज कर सकते थे जैसे कि मैंने सर्कल यूज किया। तो 30 के लिए देखो 6 सर्कल्स, 20 के लिए 4 एंड 25 के लिए 5 2 एंड 1। नाउ सी कितना इजी हो गया है आपके लिए डेटा को समझना, है ना? इजी है ना ये क्वेश्चंस करना? चलो लेट्स डू सम मोर क्वेश्चंस इंटरेस्टिंग। बस आपको इंश्योर ये करना है कि आप क्या नंबर यूज करेंगे। Here you have the number of mathematics books sold by a shopkeeper in 5 days is shown below. Monday को 75 बुक्स सोल्ड किया, ट्यूसडे को 45, वेंसडे को 90, थर्सडे 30, फ्राइडे 60। सो अब आप इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे और क्या नंबर आप चूज करेंगे? सो इसके लिए थोड़ा बहुत आपको टेबल का आइडिया होना चाहिए। देखिए यहाँ पे नंबर है 75, 45, 90, 30, 60। अब अगर मैं 5 यूज करती हूँ तो जस्ट इमेजिन 5 की टेबल में 90 तो बहुत टाइम्स बाद आएगा, क्योंकि 5 10s are 50 और आपको कितना आगे जाना पड़ेगा। तो 5 तो यूज करना फिर नहीं फायदा होगा। 10 यूज करेंगे तो भी आपको 90 के लिए 9 टाइम्स बनाना पड़ेगा, राइट? चलो थोड़ा और बड़ा नंबर सोचते हैं। अगर हम 15 यूज करें, 15 यूज कर सकते हैं। 15 की टेबल में 75 भी आता है, 45 भी, 90 भी, 30 भी और 60 भी। तो बच्चों ऐसा नंबर चूज करो जो लगभग मोस्टली के टेबल में आता है। अगर नहीं भी आता तो भी कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप कोई ऐसा नंबर चूज करेंगे तो वो आपके लिए आसानी करेगा आपको फिगर ड्रॉ करने में। तो आपने चूज कर लिया कि आप जो भी सिंबल यूज करें वो 15 बुक्स को शो कर रहा हो। तो आपने यहाँ पे सिंबल यूज कर लिया, मान लीजिए रेक्टेंगल, and one rectangle is representing 15 books, right? Now you can pause this and can make the pictograph by yourself. ठीक है? Now I am showing you the solution कि one rectangle show कर रहा है 15 books को, या फिर सर्कल आपने यूज कर सकते हो। Now you have 75. So आपको चेक करना है 15 की टेबल में 75 कितने टाइम्स आता है? 15 5s are 75, राइट? सो इस 75 को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको 5 सर्कल्स यूज करने पड़ेंगे या 5 फिगर्स, क्योंकि हमने यूज कर लिया सर्कल टू रिप्रेजेंट 15 बुक्स। तो आपको ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो पहला काम, कोई भी आप सिंबल यूज करेंगे। दूसरा काम, उस सिंबल को आपको देनी है वैल्यू एज पर द क्वेश्चन। क्वेश्चन के हिसाब से आप उसको वैल्यू दे दीजिए, बस दैट्स व्हाट यू हैव टू डू।
देन यू हैव 45, सो 15 3s आर 45, आपने यहाँ पे 3 सर्कल्स बना दिए. 15 6 आर 90, आपने 6 सर्कल्स बना दिए. 15 2s आर 30, you have made 2 circles. 15 4s आर 60, you have drawn 4 circles. Super simple. Got it? Great. तो इसी तरीके से कुछ और क्वेश्चंस को हम प्रैक्टिस कर लेते हैं बच्चों, ताकि आपके लिए इजी हो जाए इनको सॉल्व करना. राइट, चलिए लेट्स ट्राई इट. So these are the number of students in 7 different classes, and this what we have to represent on the pictograph. So different classes, different number of students are there. 60, 45, 40, 55, 65, 70 and 60. Right? अब यहाँ पे आप सोचोगे कि हम क्या नंबर यूज करें, क्योंकि आपको दिख रहा है कि नंबर इज रेंजिंग फ्रॉम 40 to 70. राइट, 40 इज द मिनिमम नंबर ओवर हियर एंड 70 इज द मैक्सिमम. आप यहाँ पे 10-10 के गैप में ले सकते हो कि आपने क्या किया कि 10 से आपने रिप्रेजेंट किया ये बॉक्स जैसे कि. ठीक है, अब यहाँ पे 45 है, तो जस्ट इमेजिन 60 के लिए तो आप 6 बॉक्सेस यूज करेंगे. 45 के लिए आप क्या करेंगे? देखो 45 मतलब 40 प्लस 5. 45 का मतलब क्या है? 4 10 10 और एक 5. तो 40 के लिए आप 4 बॉक्सेस तो बना लेंगे, 3 4. अब 5 के लिए क्या करेंगे? तो 5 के लिए आपने क्या किया, आपने एक हाफ छोटा बॉक्स बना दिया. तो इससे ये समझ में आएगा कि अच्छा ये 4 जो बॉक्सेस हैं ये तो 10-10 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एंड दिस वन इज रिप्रेजेंटिंग 5, सो 45. चलो मैं आपको ये शो करती हूँ कि कैसे आपको करना है. ऑलराइट, लेट मी शो यू हाउ टू डू दिस. सो 60 के लिए वी आर यूजिंग, 60 के लिए व्हाट वी आर यूजिंग, वी कैन यूज दीज रेक्टेंगल्स एज वेल, 1 2 3, क्योंकि आपके लिए आपको पता है दैट 1 रेक्टेंगल इज फॉर 10. 1 रेक्टेंगल 10 को दिखा रहा है. सो 1 2 3 4 5 एंड 6. ये 45 है, सो 45 विल बी डूइंग अप 1 2 3 4. अब यहाँ पे आपके पास 5 भी है, तो इसके लिए आप क्या करेंगे? यू विल बी मेकिंग अ हाफ बॉक्स. ओके, you will be making a half box. That's what you have to do. इस तरीके से आपको represent करना है. Now you have the next as 40. तो 40 के लिए you will be making 4 boxes. 1 2 3 4. 55. 55 means 5 boxes plus 1 half box. Clear है ये चीज? इस तरीके से आपको अपना डेटा रिप्रेजेंट करना है. राइट, सो हमने यहाँ पे ये शो भी कर सकते हो आप कि 1 कंप्लीट बॉक्स इज शोइंग 10 एंड द हाफ बॉक्स इज शोइंग 5. लाइकवाइज 65 के लिए आप क्या करेंगे? 6 कंप्लीट बॉक्सेस और एक हाफ बॉक्स. 70 के लिए 7 कंप्लीट बॉक्सेस, 60 के लिए 6 कंप्लीट बॉक्सेस. तो इस तरीके से आपको पिक्टोग्राफ यूज करना है. Alright, got the thing? So I think now you are super smart in doing the questions. I think I can give you some questions over here. Okay, so the next question for you is on the screen. Try attempting it. It will be easy for you to try it out. बस आपको ध्यान रखना है कि आप वैल्यू क्या यूज करो. यहाँ पे वैल्यू थोड़ा बड़ी रहेगी, 1250, 1000, 750, 1500, 500. जस्ट थिंक ऑफ कि आप क्या सोच सकते हो यहाँ पे वैल्यू यूज करने के लिए. ठीक है, अगेन यू कैन यूज 500 ओवर हियर. आप या तो 500 यूज कर लो इसको, या फिर 250. तो अगर आपने इसको 500 यूज किया, तो अगर 500 का हाफ रहा, जैसे कि 1250, आपको पता है 250 इज द हाफ ऑफ 500. सो उसके लिए यू कैन मेक अ हाफ बॉक्स दिस मच. सो इट विल बी रिप्रेजेंटिंग 250. अब आप कर सकते हो. आप इजीली अब सारे रन्स के लिए यहाँ पर शो कर सकते हो पिक्टोग्राफ. ऑलराइट, सर्कल के लिए भी आप अगर सर्कल यूज कर रहे हो कंप्लीट, तो हाफ सर्कल के लिए यू कैन मेक अ हाफ सर्कल एज वेल. कोई भी आप सिंबल यूज करो.
और ऐसा वैल्यू चूज करना है बस आपको जहां पर आपको उसका फुल वैल्यू और हाफ वैल्यू भी नजर आ रहा हो, ऐसा नंबर आप चूज करो। ऑब्वियसली आप यहाँ पे 10 नहीं यूज करोगे, 10 यूज करोगे तो 1000 है, कितने सारे आपको 100 बॉक्सेस बनाने पड़ जाएंगे। राइट, सो यूज योर नंबर वाइजली। सो कंप्लीट बॉक्स शो कर रहा है 500 रन्स को और इनकम्प्लीट बॉक्स शो कर रहा है 250 रन्स को। बस यू आर सॉर्टेड। 1250 के लिए आप उस अकॉर्डिंगली आप बना लेंगे, क्योंकि 1250 में क्या है, 1000 प्लस 250, 1000 मतलब 2500, तो 2 कंप्लीट बॉक्स आप बनाओगे और एक 250 के लिए हाफ। इस तरीके से यू हैव टू डू। मैंने हिंट दे दिया है, मैं अब और क्वेश्चंस के लिए हिंट नहीं दूंगी, बिकॉज यू हैव टू ट्राई and share your answers in the comment section, and I will be picking up the best performer as well. So do try it out. Okay, do try it out. So the next question for you is, see, यहाँ पर bottles को use किया गया. I hope you can see the half portion as well. The pictograph given below gives the sale of milk. और यहाँ पे देखिए आप, स्केल जो लिया गया है, जो कंप्लीट बॉटल है, दैट इज रिप्रेजेंटिंग 100 लीटर, और बॉटल को हाफ कर दिया है, वो दिखा रहा है 50 लीटर। 100 का हाफ इज 50, राइट। तो अब आपको अगर बताना है कि कितना दिन कितना लीटर सेल हुआ, तो आई गेस आप बता सकते हैं। अभी क्वेश्चन में पूछा नहीं गया, बट हम यहाँ से समझ गए हैं कि यहाँ से अगर हमें टोटल लीटर्स बताना होगा तो क्या हम कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। कितना बॉटल है, 1 2 3 4 5 बॉटल, और एक सिंगल बॉटल 100 लीटर को शो कर रहा है, तो 5 बॉटल कितना शो करेगा, 5 इंटू 100, दैट इज 500 लीटर्स। यहाँ पर है 1 2 3 कंप्लीट बॉटल, सो 3 इंटू 100 300, और एक हाफ है, तो यानी कि हाफ रिप्रेजेंट कर रहा है 50 को। 3 इंटू 100 इज 300 प्लस 50, 300 प्लस 50 इज 350 लीटर्स। यहाँ पर 1 2 3 4 प्लस हाफ, तो 4 इंटू 100 400 प्लस हाफ 50, so 450 लीटर। एंड द लास्ट वन इज 1 2 3 4 5, यानी कि 500 प्लस हाफ, दैट इज 550 लीटर। राइट, गॉट द थिंग। चलिए, अब इसके करस्पॉन्डिंग हमारे पास क्वेश्चंस क्या हैं, हम ये वो देख लेते हैं। ये वैसे पूछा नहीं गया था, पहले हम क्वेश्चन को देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या कहा गया है। तो क्वेश्चन में कहा गया है, कैलकुलेट द टोटल मिल्क सोल्ड इन 4 डेज। टोटल मिल्क आप कैसे बताएंगे, उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि कितना लीटर सोल्ड किया है, राइट। तो आपने पहले ही कैलकुलेट कर लिया, अब आपको टोटल लीटर बताना है, तो आप इन सबको ऐड कर लेंगे, 500 प्लस 350 प्लस 450 प्लस 550, एंड दैट विल बी योर आंसर। कितना आंसर आ रहा है देखिए, how much it will be, count it and add it up. So it is 1850 liters. You can add it up. Okay, आप रफ में ऐड करिए, 500 प्लस 350 प्लस 450 प्लस 550, that gives you all zeros in the unit place 0, 5 plus 5 10 plus 5 15, carry 1, 5 plus 5 10, 10 plus 4 14 plus 5 15 plus 3 18, so 1850 liter is the total milk. On which day the sale is maximum, बताइए, on which day the sale is maximum? So you can see that maximum number of bottle is on Thursday, so 550 लीटर थर्सडे को सेल हुआ है, तो यानी कि थर्सडे इज द डे, यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा 1850 लीटर। द आंसर ऑफ द सेकेंड क्वेश्चन विल बी थर्सडे। व्हाट वाज द सेल ऑन वेंसडे, वेंसडे को कितना सेल था, तो अगर आप देखोगे वेंसडे को देयर वाज 450 लीटर सेल। द आंसर फॉर द वेंसडे वन क्वेश्चन इज 450 लीटर। This is what you have to do. Easy, right? That's what you are required to do. Okay, this is how simple the questions are. So जब भी आपको पिक्टोग्राफ दिया रहेगा, always find the value of the questions and you will be easily able to solve the questions. Okay, so one question is coming your way. Try to take a screenshot and you have to do this by pictograph. Okay, try doing this.
for your this is a practice question for you which you all have to try. Okay, now is the time to play some quiz, to play some game. Okay, so here we go. The sale of AC on different days of week is shown below. How many ACs were sold on Friday? So Friday, and it is showing that at the rate, एक सिंगल एट द रेट शो कर रहा है 10 वैल्यू को, और फ्राइडे को हाउ मेनी एट द रेट शो करे हुए हैं 1 2 3 4 5 6. सो 6 है, 1 at the rate is 10, so 6 at the rate will be 6 into 10, that is 60. So how many ACs were sold on Friday? 60. So the answer, correct answer will be 60. Let's check it out, and yay, we did good job. Okay, next question is, on which of the following days minimum number of AC were sold? So minimum number of ACs were sold on, the least number of at the rate is on Monday. सबसे कम आपको at the rate Monday को दिखाई दे रहा है. आप नहीं भी कैलकुलेट करोगे वैल्यू तो भी दिख रहा है कि मंडे को सबसे कम दिख रहा है, राइट? एट द रेट सबसे कम, जो सिंबल है वो सबसे कम मंडे को दिख रहा है, तो करेक्ट आंसर विल बी मंडे. Let's check it out. We got it correct. Next question is, the minimum number of ice cream cones were sold on. सबसे कम आइसक्रीम कोन किस में दिख रहा है आपको? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7, and 1 2 3 4. Hey, there are 2 days when the number is same, right? On Thursday and Saturday the number is same. So the minimum number of ice cream cones were sold on Thursday and Saturday. Let's check it out. We got it correct. The last question. How many votes did reading receive? So this is a data about favorite subject and the votes. So one pencil represent one vote. How many votes did reading receive? रीडिंग को कितना वोट मिला है काउंट करेंगे. पेंसिल 1 2 3 4 5 6, 6 वोट मिला है रीडिंग को, और वन पेंसिल 1 वोट को रिप्रेजेंट कर रही है, तो 1 into 6 is 6. So the correct answer is 6. Let's check it. So we are done with it. We received all the 4 stars. That's great. Okay, so I hope you learned something today about data and pictograph, right? So make sure that you revise it what you have done today and practice questions. Thank you, kids. And if you are new over here, make sure you subscribe and like the session as well. Share it with your friends as well. Keep studying. Take care of yourself. Bye, bachcho.